Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you science. Today students will be discussing the questions and answers of this particular chapter, electricity and circuits. So let's start with the first question students. What is that? Fill in the blanks. You have to fill that sentence up. Right students? First is a device that is used to break an electric circuit is called. अब ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड स्विच. ठीक है, दैट इज स्विच. Right students, the next thing is an electric cell has dash what terminals. Firstly, an electric cell has two terminals. ठीक है students, एक इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड देन नेगेटिव टर्मिनल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर्स. A device that is used to break an electric circuit is called switch. An electric cell has two terminals. Right students? इसके पास कितने terminals होते हैं? It has two terminals. Alright students, looking at the next question, that is your second question. क्या है वो? Mark true or false for the following statement. So basically we have to tell whether the statement is correct and whether it is not. So first statement is students, electric current can flow through metals. So basically, can electric current flow through metals? So this is true students. Why it is true? Because metals are good conductor of electricity. They conduct the current through them. They allow the current to pass through them. That is why electric current can flow through the metals, because metals are conductors, right? Conductors of electricity. So this is true. The next statement students, instead of metal wires, a jute string can be used to make a circuit. Is that so? कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए क्या आप इलेक्ट्रिक वायर या मेटल वायर की जगह पे कोई जूट स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो? सो स्टूडेंट्स, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, वी कांट. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स because a jute string is an insulator and it can't be used as a metal wire. Right students? The next question, electric current can pass through a sheet of thermocol. क्या एक थर्मोकॉल की शीट में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स रॉन्ग. दैट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि जो थर्मोकॉल शीट होती है दैट इज कंप्लीटली एन इंसुलेटर. वो अपने में से करंट को पास नहीं करवाती. इट डू नॉट अलो द करंट टू पास थ्रू देम. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट कांट पास थ्रू अ thermocol sheet. Right students, this is your question number 2. Looking at the third question students, what is that question? Explain why the bulb would not glow in the arrangement shown in the figure. So students, carefully have a look at the picture. Here the bulb is attached to the bulb along with this thing, right? Screwdriver you can say. Have a look students, this is metal, but what is this? This is a plastic covering. And we all know that plastic is a poor conductor. That means plastic is an insulator. So plastic do not allow the current to pass through that. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है ना. दिस इज ये मेटल कैप क्या पॉजिटिव, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, राइट? तो जैसे ही करंट इधर पहुँचेगा ये प्लास्टिक कवरिंग तो अलो ही नहीं करेगी ना उसको आगे ट्रेवल करने के लिए. तो यहीं पे करंट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि करंट इधर तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक कवरिंग उसको अपने में से निकलने ही नहीं देगी, पास ही नहीं करने देगी. सो स्टूडेंट्स, द बल्ब विल नॉट एट ऑल ग्लो. क्योंकि बल्ब कब ग्लो करेगा? जब करंट यहाँ तक पहुँचेगा. ठीक है, जब करंट यहीं पे रुक रहा है तो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा. सो स्टूडेंट्स, द आंसर इज, सो द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर बिकॉज द वन एंड ऑफ टेस्टर और द स्क्रू ड्राइवर is made up of plastic which doesn't allow in the electric current to pass through it. ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को उसमें से पास नहीं करने देगा. कौन नहीं करने देगा? जो उसका प्लास्टिक कवरिंग होता है वो उसको अलो ही नहीं करने देगा कि वो उसमें से पास करे. लुकिंग एट द फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या है? कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन द फिगर टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स वुड बी जॉइंट टू मेक द बल्ब ग्लो. अब हमें बताना है कि ये जो वायर्स हैं इनको आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन कराओगे ताकि बल्ब ग्लो कर पाए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स हैव अ लुक कि इसको कहाँ कहाँ से ज्वाइन कराना है. फर्स्टली स्टूडेंट्स, जो बल्ब का ये होता है ये वाला पोर्शन, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, तो इस नेगेटिव टर्मिनल को आपको किससे ज्वाइन कराना होगा? पॉजिटिव के साथ, राइट?
तभी करंट प्रॉपर होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे देखो ये मेटल डिस्क है, मेटल डिस्क क्या होती है, नेगेटिव होती है, मेटल कैप वाला एरिया कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ को, इस वायर को हम यहाँ से कनेक्ट कराएंगे और इस वायर को हम इसके साथ इधर से कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे नेगेटिव एंड अल्टीमेटली किसके साथ अटैच हो गया, इस पॉजिटिव के साथ, और यहाँ का नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो फिर ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है, हैव अ लुक, ठीक है। इन दिस वे यू कैन डू दिस थिंग, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आपने ड्राइंग पेन की जगह पे की ले लिए, दैट इज ऑल्सो द कंडक्टर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इन दिस वे यू हैव दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव थिंग, ठीक है, you have attached this positive thing to this negative, right, and this positive to this negative, right students। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें इस बल्ब की, ठीक है, ये इसका ये वाला एंड नेगेटिव होता है और ये वाला एंड पॉजिटिव होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 5, what is the purpose of using an electric switch? Name some electrical gadgets that have switches built into them. सो बेसिकली स्टूडेंट्स स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को ऑन और ऑफ की पोजीशन में लेके आना, मतलब जब रिक्वायर्ड है हमें सर्किट को ऑन रखना है और जब रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें सर्किट को ऑफ रखना है। सो बेसिकली टू ब्रेक द सर्किट यू कैन से, ठीक है, जब ज़रूरत हो तो सर्किट ब्रेक हो सके उस चीज़ का काम करता है एक स्विच, ठीक है स्टूडेंट्स। और कौन कौन से ऐसे गैजेट्स होते हैं जिसमें हम स्विचेस को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मिक्सर देखो, जब हम इलेक्ट्रिकल मिक्सर की बात करें तो उसके अंदर एक स्विच होता है ना, जिसको हम ऑन करते हैं तो वो मिक्सर चल पड़ता है, जिसको जब ऑफ़ करते हैं तो वो मिक्सर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी के तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विद द हेल्प ऑफ स्विच काम करती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, कई बार हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल बाइक होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक स्विच होता है, वो स्विच ऑन करोगे तो वो चीज़ चलेगी, जब नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कॉफ़ी मशीन लेके आते हैं, कॉफ़ी मशीन में भी होता है स्विच, ठीक है, ग्राइंडर के अंदर भी होता है। सो बहुत सारी ऐसी गैजेट्स होते हैं जिसमें डेली लाइफ के अंदर स्विच का यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज़ योर आंसर, हैव अ लुक। इलेक्ट्रिक स्विच इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक करंट ओपन और क्लोज्ड फॉर अ पर्टिकुलर अप्लायंस एंड हेंस विद द हेल्प ऑफ द स्विच वी कैन यूज़ एन अप्लायंस अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी अप्लायंस को यूज़ कर सकें, इसीलिए हम स्विच को उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, बिकॉज जब ज़रूरत हो तो वो ऑन पोजीशन में रहेगा और जब वो ज़रूरत नहीं है तो वो ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब ज़रूरत नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन द फिगर इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ एन इरेजर। अगर इस सेफ्टी पिन की जगह पे हम इरेजर लगा दें और ये वायर्स कनेक्ट कर दें तो क्या ये ग्लो करेगा? नो स्टूडेंट्स, इट विल नॉट एट ऑल ग्लो, बिकॉज ये तो क्या है, कंडक्टर है, पिन है, सेफ्टी पिन है, जबकि इरेजर जो होता है वो क्या होता है, एक इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। सो बिकॉज इरेजर इज एन इंसुलेटर इट डू नॉट अलो द करंट टू पास थ्रू दैट, सो दैट इज वाई द बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द आंसर इज नो, since eraser is an insulator so it doesn't allow the current to pass, hence the bulb will not glow, ठीक है students। looking at the next question, क्या है 7th question, would the bulb glow in the circuit। अब ध्यान दो, इसमें इसका जो पॉजिटिव एंड है ये किसके साथ अटैच्ड है, इस नेगेटिव के साथ, और इसका जो नेगेटिव एंड है वो किसके साथ अटैच्ड है, इस पॉजिटिव वाले के साथ। मेटल कैप क्या है, पॉजिटिव है, और मेटल डिस्क क्या है, नेगेटिव है। और अब ध्यान दीजिए, तो जो ये सर्किट है अभी कंप्लीट है, तो सर्किट कंप्लीट है तो आपका बल्ब ग्लो होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। सो द आंसर इज येस, द बल्ब विल ग्लो एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज्ड होने के कारण करंट का जो फ्लो है वो कंप्लीट है, इसी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। लुकिंग एट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट it was found that the bulb begins to glow, ठीक है। जब हमने कंडक्शन टेस्ट किया किसी ऑब्जेक्ट पे तो देखा गया कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर, एक्सप्लेन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को कंडक्शन टेस्ट में लगाने के बाद जो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मटेरियल क्या था, वो ऑब्जेक्ट क्या था, दैट ऑब्जेक्ट यूज टू बी अ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि वो अपने में से करंट को पास करने दे रहा है,
और अगर कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो कि अपने में से करंट को पास करने दे रहा है तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर. ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर yes. If the object is good conductor of electricity, then current will pass through conduction test and the bulb will glow. Hence, the object will be a conductor of electricity. क्योंकि वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे रहा है, that is why वो एक कंडक्टर है. ठीक है स्टूडेंट्स, looking at the next question. 9th, why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. So basically the question is that कि जब हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रिशियन के बारे में, तो जो वो इलेक्ट्रिशियन होता है रबर ग्लव्स को पहनता है जब भी वो किसी इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर कोई करंट वहाँ से निकलता है, ठीक है, तो क्योंकि उसने रबर वाला ग्लव पहना होगा तो वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि रबर ग्लव्स विल नॉट अलो द इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट टू पास थ्रू दैम. ठीक है, सो बिकॉज जो रबर ग्लव्स होंगे वो इंसुलेटर होंगे तो करंट उसमें से पास नहीं हो पाएगा, मतलब वो अलो ही नहीं करेंगे करंट को उसमें से पास होने के लिए. तो इलेक्ट्रिशियन वो रबर ग्लव्स पहनता है ताकि जो स्विच का करंट है वो उसकी बॉडी तक ना पहुँचे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो द आंसर इज अ बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रबर इज इंसुलेटर. ड्यूरिंग रिपेयरिंग वर्क इफ द बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द करंट, अगर बॉडी करंट के कॉन्टेक्ट में आती है, क्योंकि बॉडी तो एक अच्छा कंडक्टर है तो वो तो करंट को पास करने देगी, तो इससे अच्छा है कि बॉडी कॉन्टेक्ट में ही ना आए. ठीक है, तो बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं आए तो इसलिए हम हाथ में ग्लव्स पहनेंगे, रबर ग्लव्स. और रबर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो वो उसको कॉन्टेक्ट में आने नहीं देगा, करंट को पास नहीं करने देगा. ठीक है, कैरिंग वायर विद देन there will not be any accident as rubber doesn't allow the passage of current through it. Hence, electrician uses rubber gloves while repairing an electric switch. This is our question number 9. Alright students. Looking at the next question, that is your question number 10. That is, the handles of the tool like screwdrivers and pilers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain? अब जब भी हम किसी इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, जब भी कोई रिपेयर वर्क वो कर रहे होते हैं तो यूजुअली उनके पास रबर या प्लास्टिक कवर्स होते हैं. रीज़न क्या है, अभी हमने बात की, बिकॉज जो ये प्लास्टिक और रबर होता है ये इंसुलेटर होता है तो करंट को पास नहीं करने देता. सो स्टूडेंट्स, द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट कि जो रबर होता है या फिर कोई भी प्लास्टिक होता है, दैट इज़ एन इंसुलेटर जो कि अपने में से करंट को पास नहीं करने देता. और क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडक्टर है तो हमें कोई एक्सीडेंट से नुकसान ना हो, करंट हमारी बॉडी से पास ना हो, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि हमारी बॉडी उसके कांटेक्ट में ही ना आए. और इसलिए हम इन दोनों मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों मटेरियल्स करंट को अपने में से पास नहीं करने देते और इसी वजह से करंट पैसेज का जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है इन दोनों मटेरियल्स की मदद से. ठीक है, बिकॉज ये करंट को अलो ही नहीं करते एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. Plastic or rubber is an insulator which doesn't allow the electric current to pass through it, right? The handles of the tools like screwdrivers and pilers used by electrician for repair have covering of plastic or rubber so that electric current may not pass through these tools to the body of the electrician to harm him. ठीक है, ताकि उसकी बॉडी तक ना पहुंच पाए तो उसकी जो आउटर कवरिंग है उस पर रबर और प्लास्टिक लगाया जाता है ताकि करंट पास ही ना कर पाए उसकी बॉडी तक. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर एंड अ वेरी न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13 स्टूडेंट्स. टिल देन, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल. बाय बाय.